Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum. Welcome to this subject, Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. We are starting this course from today, and this will include two major things, two major softwares for your project management. Let's have first have an introduction about me. My name is Mia Wasim Irshad. I am a professional engineer and PMP certified. I have also done MS in project management. Students, I am working as manager planning and coordination in a public sector organization, and I am looking after many projects which we will discuss in upcoming slides. Project management consultant at different organizations, and trained hundreds of professionals at Heuristics Private Limited, at National Institute of Design and Analysis, at Project Management and Planning Institute, National Institute of Management, and Pakistan Postal Staff College, ComSets. I have trained hundreds of professionals. I'm a working professional, and the teaching is in fact my hobby, and I do it just for transfer of knowledge. So let's see. Here is my education and training. Students, project management professional certified. I have done PMP certification, and this is one of the most prestigious certifications in project management globally. So recognized over the world, और आप जहाँ भी चले जाएं, project management professional से प्यारी डिग्री आपको, प्यारी certification आपको नहीं मिलेगी in project management. It covers all dimensions of project management. So I have done masters in project management from ComSets Islamabad, and we were the pioneer batch of Pakistan. In Pakistan, the first degree of MPM was awarded to our batch. So thanks to ComSets. Students, I have done bachelor in software engineering from Bahria University Islamabad. So my basic trade, my basic the basic technology in which I work is the software. My basic field, my basic engineering is the software. So I am a software guy. I have done Primavera P6 certification from SDC. I have been using Primavera from past many years on many projects, and I am also certified for this thing. Students, Oracle 10G training from PETS. I have also got this training just for management of Oracle with this Primavera. So Oracle, you know, is a huge database application, one of the very stable and world's most renowned database. Oracle and its other applications are also very beautiful. They are working in the education sector, they are working in the banking sector, they have got financial solutions, they have got complete human resource management solutions. So Oracle is one of the beautiful solutions available. Students, I have done FEA training from ISN France. Finite element and modeling का training मैंने किया है from France, और this included the analysis and the finite element modeling of different things. I have also done ISO 9001-2008 training. इसकी भी ट्रेनिंग किया हुआ है, और इसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन मैं कर रहा हूँ. इसका स्टैंडर्ड की कंप्लीट जो जितनी भी इसकी क्लॉजेज हैं उन सबको बहुत अच्छी तरह आई अंडरस्टैंड देम एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड देम. स्टूडेंट्स, सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ISMS फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट 27001-2005. I have also attended training for this thing, and I am in charge for implementation of this thing at my respective organization. So this is also one very important thing which I think I have got. OSAS 18001 training, and I have supervised the safety department, the occupational health and safety department of my organization for few years. और इसमें कंप्लीट चीज़ें सारी फायर फाइटिंग से लेकर और कंप्लीट जो सेफ्टी के इशूज़ हैं वो सारे के सारे I have implemented. Students, I have got training on improving personal effectiveness from STI Islamabad, certification in Java, RDBMS and C#. I have got these certifications as well,
and 1 certification in Imageware. This was a cloud software, और इसके ऊपर भी एक certification मैंने किया हुआ है. Students, this was all about my education and training. Major projects, students, the major field which I have opted from right after my degree, that was enterprise resource planning solutions. So I have been working on enterprise resource planning solutions. I have seen the solutions. I have been in designing team of the solutions. I have designed Honeycomb ERP, and I was part of team of designing for Honeycomb ERP, and I have implemented this human resource planning solution into many enterprises. Students, implementation of ERP is one of very difficult thing, because it doesn't only deal with the software, but it is in fact a change process. It has to deal with the human minds. So one things which I have gotten my credit is that I have implemented this sort of solution in many enterprises. Students, I have also established a project management office in my organization, and it is working absolutely fine, and it is capable of handling more than 20 different projects at the same time. It is in supportive role right now, और मेरी जो teams हैं उनको बहुत effectively it is supporting. So this was concept which was introduced by me in fact. I have worked as senior architect on Honeycomb ERP, deployed in 15 different industries. Hico Surgical में implemented है ये. Hico Surgical is a renowned name. यहाँ पे implement किया गया है. Tariq Glass, आपने Nova और Toyonesic का नाम सुना होगा. They are products of Tariq Glass. Tariq Glass में Honeycomb ERP has been implemented, and it is working very fine. Our happy clients include Elmet Surgical. Elmet and Eltec are two major, two very good groups of surgical manufacturing association of Pakistan in Sialkot. Then Libra Pharmaceutical, I have also implemented this software into pharmaceutical company, and this is located in Peshawar, and the solution is equally good for this industry as well. Then I have implemented this software in National Furnishers in Gujarat, and is also working absolutely fine over there. Khyber Match, Ace Supply Chain, Al Hafiz Christoplast are also amongst the client list of this software. Al Hafiz Christoplast is a very huge unit for bottle blowing, and they are also using this software. Then Durrani Surgical, Durrani Surgical Medical Devices, one of the biggest company of surgical groups of Sialkot, they are also running this software, and I have been in leading role for implementation of software over there. Students, then we have got I have worked on development and implementation of paperless resource management system. I have worked on different softwares which normally have one goal, that is you have to make your environment paper free. And paperless resource management system was also a small software, but working very effectively in the required place. Office automation system was a product developed for Military College JLM. It is also implemented in many other organizations. I was also in development team and implementation team of this software as well. EduSol was educational software, and I have worked on it. I have been working from past 10 years on the softwares, and EduSol was one of the ventures in that. It has been implemented in Qaid-e-Awam University Nawab Shah, in Civil Services Academy, Military College Academy, and Gomer University DI Khan. Students, NetWatch was a video surveillance software. I have also worked in development of this. So these were the some glimpse of what I have done in my career. I don't say that it is the best one can do, but I have tried my level best to work on the things by which I am attracted. Students, the importance of this course, what is the importance of this course? बहुत ही मज़ेदार बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम लोग जो हैं वो इस कोर्स की इम्पोर्टेंस को किस तरह से रियलाइज़ करवाते हैं. स्टूडेंट्स, देखिए, आप लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं अभी राइट नाउ, व्हाट यू आर स्टडीइंग इज़
is the theoretical knowledge. Now when you will move into the market, when you will join any organization, you have to implement all those concepts. वो जो concepts जो सारे अभी आप सीखते जा रहे हैं, you have to implement all those concepts, and implementation of those concepts include the softwares. You cannot go just on the paper. You need to have some software in your hand, और वो सॉफ्टवेयर जो है इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. एंड वी विल कवर 2 वेरी प्रेस्टिजियस सॉफ्टवेयर्स. वन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, बहुत फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है, ईजी टू यूज़ है. क्या यू कैन प्लान योर प्रोजेक्ट इन वेरी लेस टाइम, और इट इज़ पोर्टेबल एज वेल. स्टूडेंट्स, सेकेंड एप्लीकेशन इंशाल्लाह जो हम लोग देखेंगे दैट विल बी प्राइमावेरा. Primavera is also very renowned project management application in the world, और सबसे ज़्यादा पुराना सॉफ्टवेयर है, 1983 से स्टार्ट हुआ. इस पे हम लोग इंशाल्लाह इसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, और इसकी जो है तमाम जो चीज़ें जो आपको प्लानिंग में रिक्वायर्ड होती हैं वो हम लोग आपको सिखाएंगे भी और डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे. सो importance of this course is that this is something which will be separately added to your resume, one thing. Second thing, अगर आप कभी just newspaper में बैठिएगा और मिडिल ईस्ट के जो जॉब्स के एड्स आते हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या लोकल इंडस्ट्री में जो प्योरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो एड्स आते हैं, जो जॉब्स जो डिमांड करती हैं, जो जॉब्स जो हैं उनकी उनमें जो रिक्वायरमेंट दी गई होती है, अगर आप वो देखिए तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर नज़र आएंगी. एक चीज़ यहाँ आपको PMP सर्टिफिकेशन नज़र आएगी कि उसकी डिमांड की गई है, इट इज़ अबव ऑल. एंड देन आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा के ऊपर काम करना आता हो, इसकी डिमांड ज़रूर की गई होगी. सो वो लोग जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं एंड दे नो हाउ टू यूज़ दीज सॉफ्टवेयर्स, दे विल बी एलिजिबल फॉर दैट थिंग. और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि दिस विल रियली एड वैल्यू टू योर रिज्यूमे. स्टूडेंट्स, लेट्स सी द कोर्स आउटलाइन. के कोर्स आउटलाइन क्या है, हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं. स्टूडेंट, दिस इज आवर कोर्स आउटलाइन, और हम इसको देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे. आप देखिए कि सबसे पहले इट इज़ टेलिंग यू दैट वी विल डिस्कस अबाउट ट्यूटर्स प्रोफाइल, जो कि अभी राइट हमने डिस्कस किया. देन आफ्टर दैट द कोर्स आउटलाइन विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल. स्टूडेंट्स, कोर्स आउटलाइन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2010 के ऊपर हम लोग देखेंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है, इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, उस पर किस तरह से काम करना है. वी विल डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स. हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स पे बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. हमारी कोशिश होगी कि हम आपको प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ज़रूर दिखाएं कि आपका जो प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो क्या है, और आपका जो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है. देन स्टूडेंट्स, हम लोग बड़ी डिटेल से बात करेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. और मैं आपको बताता चलूँ कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अगर बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, इफ़ यू कैन नॉट डेवलप अ वेरी गुड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, देन I don't think it is worth being a project manager. So you must know how to develop the work breakdown structure. Students, work breakdown structure is not just कि आप decompose कर दें और आप tree type structure बना दें, बल्कि it has got some set standards. So वो set standards जो हैं वो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे. And then after that हम लोग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज के ऊपर ज़रूर बातचीत करेंगे कि प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, टाइम, कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, इन पे बातचीत होगी. इनकी आपस में किस तरह से क्लासिफिकेशन हुई है, किस चीज़ को किस में आपने कंसिडर करना है. एंड देन हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट विल बी ओवर एलोकेशन, कि वंस रिसोर्सेज की बात आ गई तो हम देखेंगे कि यार किस तरह से रिसोर्सेज जो हैं वो उनको अगर उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम दे दिया जाए तो उन पे क्या इफ़ेक्ट आता है, अगर उनको उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम के लिए डिमांड कर दिया जाए तो उन पे क्या इफ़ेक्ट आता है, और वो उसको उस इफ़ेक्ट को किस तरह से हम लोग ख़त्म करेंगे. रिसोर्स लेवलिंग में हम लोग देखेंगे कि उस इफ़ेक्ट को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाएगा, किस तरह से उस इफ़ेक्ट को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे.
स्टूडेंट्स, PERT प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के ऊपर हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। एंड देन हमारी डिस्कशन होगी अबाउट गैंट चार्ट, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है टाइम लाइन पे बार्स के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट प्लान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन PERT हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप बेटर एस्टिमेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप लोगों के जो ऐसे एस्टिमेट्स हैं जो इन पे प्रॉब्लम है उन, या जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, उनको आप किस तरह से एक सेटलमेंट पॉइंट पे ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग रिलेशनशिप्स की बातचीत करेंगे टास्क के दरमियान, और हम लोग देखेंगे कि दो जो टास्क हैं प्रोजेक्ट में, कोई भी दो टास्क, वो एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड कर रहे होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, और वो रिलेशनशिप कितनी टाइप्स के हैं, वो रिलेशनशिप जो हैं वो उनका इफ़ेक्ट क्या आता है, किस मौके पे कौन सा रिलेशनशिप अप्लाई करना है, किस वक्त किस रिलेशनशिप की आपने इम्पोर्टेंस को चेक करना है। सो ये चीज़ें जो है सारी इंशाल्लाह हम लोग इस कोर्स में देखेंगे। सो देन क्रिटिकल पाथ की बातचीत हम लोग करेंगे कि क्रिटिकल पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ को बनाने की टेक्निक क्या है, हम लोग किस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, नेटवर्क डायग्राम में एक्टिविटीज़ कहाँ लिखी जाएंगी, किस तरह वो कनेक्ट की जाएंगी आपस में, प्रीडिसेसर क्या होगा, और फिर वो जो नेटवर्क डायग्राम बन जाएगी उसमें से किस तरह से पाथ्स की लिस्टिंग होगी, और देन पाथ्स की लिस्टिंग होने के बाद किस तरह से क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई होगा, और वो क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, उस क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे, और उस क्रिटिकल पाथ की क्या इम्प्लीकेशन है ओवर योर प्रोजेक्ट प्लान। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस थिंग इन आवर अपकमिंग lectures in our course. Students, we will discuss lag. हम लोग लैग को डिस्कस करेंगे कि लैग क्या होता है, और लैग जो है वो क्यों आपको इंक्लूड करने की जरूरत पड़ सकती है, और लैग की इम्पोर्टेंस क्या है। इसी तरह से लीड किस तरह से लैग से डिफरेंट है, और लीग की इम्पोर्टेंस क्या है, लीग का पर्पज़ क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेटवर्क डायग्राम जो हमने अभी बात की हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इन्वायरमेंट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का, कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट है वो किस तरह से है, उसके व्यूज़ क्या क्या हैं, क्या चीज़ देखनी हो तो कहाँ से जाके चेक करेंगे, मेन्यूज़ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, टूल बार्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से आप चीज़ों को ईजीली मैनेज कर सकते हैं इन योर व्यूज़, के आपको उनको ईजीली टॉगल कर सकें और हर चीज़ आपके सामने हो। स्टूडेंट्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ आप रखेंगे, और इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ आप एंटर करेंगे, कौन सी चीज़ मस्ट है, कौन सी चीज़ मस्ट नहीं है, और जो जो फील्ड उस पर दी गई हैं उन फील्ड्स का पर्पज़ क्या है। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी कि हम लोग स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आएगी दैट विल कि हम लोग डेट फॉर्मेट किस तरह सेट कर रहे हैं, टास्क को जो है वो एंटर किस तरह से करना है, जो टास्क लिखने हैं वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, और कैलेंडर्स के बारे में बातचीत करेंगे कि जो आपके टाइमिंग्स हैं, जो आपकी छुट्टियां हैं, जो आपके कैलेंडर्स हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो किस तरह से हैंडल होंगे, उनकी क्या साइंस है, उनका क्या मैकेनिज्म है। इस चीज़ को इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, देन हम लोग बातचीत करेंगे बार फॉर्मेटिंग के बारे में, कि जो गैंट चार्ट पे आपकी जो बार्स आ रही हैं वो किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है आपने, एंड देन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को यूजिंग योर सॉफ्टवेयर ये आपको कैसे हेल्प आउट करेगा कि आप क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर सकें, और वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करने के एक मेथड है या मल्टीपल मेथड्स हैं, वो मल्टीपल मेथड्स कौन कौन से होंगे, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। एंड देन हम लोग देखेंगे कि जो कैलेंडर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस क्या है, अगर हमारे पास कोई कैलेंडर्स हैं तो उनकी क्या सीक्वेंस है, किस कैलेंडर की क्या वर्थ है, कौन सा कैलेंडर पहले कंसिडर होगा, कौन सा कैलेंडर बाद में कंसिडर होगा, इस चीज़ को देखा जाएगा। देन टाइम स्केल का क्या पर्पज़ है इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, उस पर बातचीत होगी। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ग्रिड क्या होता है, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ग्रिड लाइंस को डिस्कस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, और ग्रिड लाइंस पे कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि आप उनको हाईलाइट करें। एंड देन एडिटिंग समरी बार एंड टाइमलाइन, फिर ये कि जो आपकी समरी बार है वो कैसे एडिट की जाएगी और समरी बार होती क्या है इनफैक्ट, इस बात को डिस्कस किया जाएगा। एंड देन CPM विज़ार्ड, एंड देन लिंकिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है ये किस तरह से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ लिंक करता है, और ये लिंकिंग आया ज़रूरी भी है कि नहीं है, और इस लिंकिंग का आपको हम हर चीज़ इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले लेके पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर उस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है आपको, जो आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उसमें उसका पर्पज़ क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट ही है जिसके बारे में आपने बातचीत करनी है, आपका प्रोजेक्ट ही है जिसमें आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है। सो हम लोग आपको ये उस रेलेवेंस में चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे। इंडिकेटर्स कॉलम पे बात होगी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में अगर आप डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, और अगर उसके लिए कोई काम है तो वो इंडिकेटर्स कॉलम है और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग बातचीत करेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आप देखिए तो हमारे पास WBS और WBS कोड की बात आएगी कि पहले तो किताबी बात करेंगे कि किताबों में WBS क्या है, देन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की बात करेंगे कि वहाँ पे WBS क्या है, ये WBS किस तरह से बनाया जाएगा, सॉफ्टवेयर में WBS बनाने के तरीक़ाकार क्या हैं, और WBS की कोडिंग मैकेनिज्म्स क्या होंगे। स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में कि क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड हैं, और क्या क्या जो है वो कॉन्स्ट्रेंट्स की टाइप्स कितनी हैं, मेजर टाइप्स कितनी हैं, और फिर हर एक टाइप के अंदर मजीद कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इनका बेनिफिट पे है या नुकसान है, ये सारी बात इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर ये कि डेडलाइन कॉन्स्ट्रेंट से किस तरह से रिलेट करती है, और डेडलाइन कहाँ पे आपको हेल्प आउट करती है जब आप कॉन्स्ट्रेंट यूज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली डिस्कस भी करेंगे और करके भी देखेंगे। देन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की रेलेवेंस में रिसोर्स की कितनी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे उसके बाद कि कितनी कितनी टाइप्स के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं विद रेलेवेंस टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। वर्क टाइप रिसोर्स हैं, मटेरियल टाइप रिसोर्स हैं, कौन कौन से हैं। देन स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस चेंजिंग डिफॉल्ट करेंसी, और बेसिक यूनिट पे हम बात करेंगे, एंड देन बिल्डिंग रिसोर्स डिक्शनरी। हम लोग बात करेंगे कि हमने रिसोर्स देख तो लिया कि कैसे ऐड होते हैं, उसके बाद हमारी जो रिसोर्स की एक डिक्शनरी है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, या रिसोर्स की जो लिस्ट है वो कैसे क्रिएट की जाएगी। सो उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह हमारे डिटेल टॉपिक्स होंगे। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल फिक्स्ड के साथ किस तरह से रिलेट करती है, वेरिएबल बेहतर है या फिक्स्ड बेहतर है, कौन सी यूज़ करनी चाहिए, किस सिनेरियो में कौन सी यूज़ करेंगे, विद एग्जांपल्स हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज को किस तरह से असाइन किया जाएगा एक्टिविटीज़ को, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, दोनों का रिलेशनशिप क्या है, और देन इस असाइनमेंट में अगर कोई रिसोर्स रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो रिप्लेसमेंट किस तरह से होगी, इंशाल्लाह वो चीज़ हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आप देखिए तो हमारे पास कॉस्ट एक्रूअल टेक्निक्स आएंगी कि पैसों को पेमेंट किस तरह से करनी है, उसके क्या तरीके हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, और किस टाइप में पेमेंट प्रोजेक्ट को कब चार्ज होगी। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर आपने प्रोजेक्ट के तमाम एजेस को कंट्रोल रखना है, कोई एज आपसे बाहर नहीं होना चाहिए। सो कॉस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे कि एफर्ट ड्रिवन स्केजुलिंग क्या होती है, एफर्ट क्या है और व्हाई इट इज कॉल्ड एफर्ट ड्रिवन स्केजुलिंग, एंड देन टाइप्स ऑफ टास्क के बारे में बातचीत होगी कि टाइप्स ऑफ टास्क कौन कौन से हैं, ओवरऑल एलोकेशन क्या है, और टास्क का फार्मूला क्या है, वो कौन सी चीज़ है जिसकी बेस पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अपने आप को ड्राइव कर रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देन स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन होगी इट विल बी अबाउट कैश फ्लो और एस कर्व के बारे में कि कैश फ्लो क्या है, एस कर्व जो है वो किस तरह से जनरेट किया जाता है, और कैश फ्लो और एस कर्व की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी एडेड दिस थिंग इनटू दिस। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग आवर कोर्स हम लोग फॉर्मेटिंग पे बहुत तफसील से बात करेंगे कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। सो हम लोग फॉर्मेटिंग पे बहुत बात करेंगे,
ग्रुपिंग पे बात करेंगे, सॉर्टिंग पे, फिल्टरिंग पे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की लिंकिंग पे बातचीत होगी, रीअकरिंग टास्क पे बात होगी, क्योंकि अगर ऐसा टास्क आ जाता है जो कि पीरियोडिकली उसने अकर करना है तो उसको किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हैंडल करेगा। एंड देन नोट्स वगैरह अगर ऐड करने हैं तो वो किस तरह ऐड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स हम लोग उसके बाद बातचीत करेंगे कि ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की क्या होती है। ट्रैकिंग एक बहुत मेजर फेज है प्लानिंग के बाद। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को ट्रैकिंग कहा जाता है, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल किस तरह से की जाएगी आपके जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है उसमें, और उसमें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करने के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या होंगे, इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। बेस लाइन के बारे में बात करेंगे, प्रोग्रेस अपडेट के बारे में बात करेंगे, स्टेटस डेट के बारे में बात करेंगे, स्टेटस डेट क्या होती है, कंपैरिजंस के बारे में बात करेंगे, रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है कि रिपोर्टिंग क्या है और रिपोर्टिंग किस तरह से जो है उनको हेल्प आउट कर सकती है, और किस तरह से आपकी मर्ज़ी की रिपोर्ट्स इवन बनाई जा सकती हैं। इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग प्राइमावेरा स्टार्ट करेंगे, और प्राइमावेरा क्योंकि एक मुश्किल सॉफ्टवेयर है तो इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन की गाइड हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंपल सॉफ्टवेयर कि आप जस्ट जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ट्रबल करे। सो वो ट्रबल्स क्या हो सकती हैं और वो किस तरह से इंस्टॉलेशन होगी वो भी हम लोग आपको यहाँ पे दिखाएंगे। स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारा लर्निंग मॉडल होगा उसमें ये होगा कि हम लोग पहले कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ सारी की सारी जो काम है प्रोजेक्ट प्लानिंग के वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में करेंगे। देन वही सारी चीज़ें हम लोग प्राइमावेरा में करके देखेंगे कि प्राइमावेरा में वो सारी चीज़ें किस तरह होती हैं, ताकि आपका माइंड रिलेट कर सके कि हाँ डेट फॉर्मेटिंग वहाँ तो की थी, इसका पर्पज़ ये था, यहाँ पे कैसे होगी। अच्छा रिसोर्सेज वहाँ पे लोकेट किए थे, यहाँ पे कैसे होंगे। अच्छा ट्रैकिंग वहाँ ऐसे की थी, यहाँ पे किस तरह होगी। सो ये चीज़ जो है ये आपको इंशाल्लाह रिलेट करने में हम आपको काफ़ी सारा हेल्प आउट करेंगे। स्टूडेंट्स वी आर हेयर विद वेरी पॉजिटिव इंटेंशंस एंड वेरी energetic mood, in fact we will say, or during this course we will try to put energy in you as well, और आपकी जो ऑलरेडी जो आपकी विल है और आपकी जो लगन है और आपकी जो ये काविश है इसको मज़ीद प्रोडक्टिव करने की कंप्लीट हेल्प करेंगे। स्टूडेंट उसके बाद प्राइमावेरा में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है एक्टिविटीज़ ऐड की जाती हैं, किस तरह से जो है डिफरेंट टूल बार्स शो की जाती हैं, एंड देन कैलेंडर, इसमें कितनी टाइप से कैलेंडर्स हैं, इसमें कैलेंडर क्रिएट कैसे किए जाते हैं, एंड देन ड्यूरेशंस जो हैं वो किस तरह से ऐड किए जाएंगे, ऑटोमेटिक स्केजुलिंग क्या होगी, मैनुअली स्केजुल कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह डिस्कस होगी। एंड देन वर्किंग ऑन प्राइमावेरा P6, देन प्राइमावेरा P6 पे वर्किंग हम लोग देखेंगे कि उस पर हम लोग किस तरह से प्रैक्टिकली काम करते हैं। रिलेशनशिप्स की बात होगी कि इसमें वो रिलेशनशिप्स जो सारे वहाँ पढ़े वो इसमें किस तरह से अप्लाई होते हैं। ठीक हो गया। पीछे जो बैक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो ये याद रखिएगा कि वो थ्रू आउट द कोर्स सेम रहेगा। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है वो सबके लिए सेम रहेगा, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो तो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से यूज़ करता है और उस कॉन्सेप्ट को प्राइमावेरा कैसे यूज़ करता है, ये चीज़ जो है हम लोगों ने देखनी है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि रिलेशनशिप्स जो हमने पढ़े टाइप्स वो इसमें किस तरह से अप्लाई हो सकती हैं। टोटल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसमें, और टोटल फ्लोट क्या होता है, स्लैग क्या होता है और फ्लोट क्या होता है, स्लैग और फ्लोट का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, वो फ्लोट की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी प्राइमावेरा में, ये चीज़ हम लोग इंशाल्लाह से ज़रूर कोशिश करेंगे कि देखें। एंड देन जो हमारी बार्स नज़र आ रही हैं, जो हमारी कलर थीमिंग है, जो हमारी छोटी छोटी फॉर्मेटिंग है, जो थोड़ा डाटा यहाँ दिखाना थोड़ा वहाँ दिखाना, जो लेजेंड्स हैं ये किस तरह से शो किए जाएंगे, कस्टमाइजेशन किस तरह से होंगी, कन्फिग्रेशन किस तरह से होंगी कि आपको चीज़ें उस तरह नज़र आए जैसे आप चाहते हैं। स्टूडेंट्स प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे कि प्रिंटिंग के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है और वो जो चीज़ है वो आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल से बातचीत करेंगे। और देन क्रिएटिंग WBS डिक्शनरी के बारे में देखेंगे कि इसमें WBS किस तरह से डिफरेंट है MS प्रोजेक्ट से, और इसमें WBS क्रिएट करने का तरीका क्या है और किस तरह से एक्टिविटीज़ को जो है एसोसिएट करेंगे WBS के साथ। एंड देन इसमें OBS कैसे बनाया जाएगा,
रोल्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, और कब आप रोल्स यूज़ करेंगे, कब आप रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह ये सारी जो बातचीत है हमारी, ये हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे और बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, ये देखना पड़ेगा। और फिर एक्टिविटी कोड्स के बारे में बात होगी कि एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकती है, उसकी बाइफर्केशन किस तरह से हो सकती है, और वो क्लासिफिकेशन करने के क्या क्या तरीके मौजूद हैं, और व्हाट इज़ द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विच प्राइमवेरा प्रोवाइड्स यू फॉर दिस क्लासिफिकेशन। ओके, इज देयर एनी लिमिट और नॉट। स्टूडेंट्स, हम लोग वही बात ग्रुपिंग और प्रिंटिंग की बात इसमें भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। एंड देन हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज क्रिएट, इसमें कितनी टाइप्स के रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और वो रिसोर्सेज क्रिएट करने से पहले क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, आपकी करेंसी किस तरह से डील होगी, आपके कॉस्टिंग यूनिट किस तरह से डील होंगे, आपके जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो किस तरह से क्रिएट किए जाएंगे, वो किस तरह बनाए जाएंगे, और उनका पर्पज़ क्या है। सो ये चीज़ इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तफसील से कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। एंड देन स्टूडेंट्स, हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि जब रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है तो वो किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से डिफरेंट है इन प्राइमवेरा। एंड वंस रिसोर्सेज एलोकेटेड, तो फिर उन रिसोर्सेज में उनकी ओवर एलोकेशन चेक कैसे करेंगे और उनकी लेवलिंग किस तरह से की जाएगी, ये बातचीत हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। स्टूडेंट्स, देन एक्टिविटी की टाइप्स देखी जाएंगी, माइलस्टोन्स की टाइप्स देखी जाएंगी, हम लोग जो है रिसोर्स कर्व्स देखेंगे, वर्क कंटूर्स हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, और उसकी रेलेवेंस देखेंगे प्राइमवेरा में कि किस तरह से किसी रिसोर्स के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको आप उनके साथ प्ले कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, हम लोग जो चीज़ देखेंगे कि इसमें एस कर्व किस तरह से जनरेट होता है, इसमें कैश फ्लो किस तरह से जनरेट होता है, इसमें ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से आपको हेल्प आउट करती हैं। इसमें फिर देन हम ट्रैकिंग पे आ जाएंगे कि ट्रैकिंग जो है वो प्राइमवेरा में कैसे होती है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में कैसे होती है, उसमें कैसे बेसलाइन बनाई जाती है, इसमें कैसे बेसलाइन बनाई जाती है, किस तरह से चीज़ों को टैली किया जाता है, डाटा डेट क्या है, स्टेटस डेट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्या चीज़ रोल बैक की जा सकती है, क्या चीज़ रोल बैक नहीं की जा सकती, कौन कौन से आपके पास लेआउट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से आपके पास जो है वो EPS अवेलेबल हैं, आपके जो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखेंगे कि वो कैसे बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हमारी जो चीज़ें हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से इनको कवर करें, और हम लोग जो हैं इंशाल्लाह ये सारा आउटलाइन आपको सिखाएंगे। और मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करता चलूँ कि हमारी कोशिश ये होगी कि वो तमाम फंक्शनैलिटी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की और प्राइमवेरा की जो कि ज़रूरी है टू प्लान द प्रोजेक्ट, टू मैनेज द प्रोजेक्ट, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट, वो तमाम हम आपको बता दें। इसके बाद एफर्ट आप लोगों की होगी कि आप उसे किस तरह से प्रैक्टिकली करके देखते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड के these tools are in fact very much beneficial to you. स्टूडेंट्स, डिलीवरेबल्स, इस जो कोर्स के डिलीवरेबल्स हैं उनमें आप ये देख लीजिए कि 4 क्विजेज इंक्लूडेड होंगे आपके पास। आपको 4 क्विजेज दिए जाएंगे, 4 असाइनमेंट्स होंगी आपकी, एक मिड टर्म एग्ज़ाम होगा और एक फाइनल एग्ज़ाम होगा। सो इस चीज़ को जो है हम लोग इंशाल्लाह ये आपकी जो डिलीवरेबल्स हैं वो आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, रेफरेंस बुक्स जो हैं यहाँ पे आपकी मेंशन कर दी गई हैं। ये देखिए आपके पास एक बुक प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2010 द मिसिंग मैनुअल है, ये बुक आप बाय कर सकते हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी बड़े आराम से। देन स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट 2010 अलॉन्ग विद ऑथर नेम्स ये आपको लिख दिए गए हैं, ये आप बस नोट भी कर लीजिए। और ये जो हैं आपकी स्लाइड्स जो आपको मिलेंगी उनमें भी ये लिखा हुआ होगा। सो इनमें से कोई एक बुक ले लीजिए, ये आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर देगी। दीज आर 2 मोर बुक्स, सईद बुक बैंक पे ये बुक्स अवेलेबल हैं, प्रोजेक्ट 2010 इनसाइड और प्रोजेक्ट 2010 फॉर डमीज। सो ये भी आप देख सकते हैं, अलॉन्ग विद ऑथर्स आपको ये बता दिया गया है कि कौन कौन सी बुक्स हैं। यू कैन बाय देम, यू कैन यूज देम एज रेफरेंस फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल एज व्हेन यू विल बी वर्किंग प्रैक्टिकली ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, एक कोट कहीं पे लिखा हुआ पड़ा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा था, टेल मी एंड आई फॉरगेट।
टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। स्टूडेंट्स, हमारा जो वे ऑफ वर्किंग होगा इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो इस मॉडल पे चलेंगे। इन्वॉल्व, यू ऑल हैव टू गेट इन्वॉल्व, और हमारी कोशिश होगी कि हम हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व करके चलाएं और आपको जो है ताकि बेहतर से बेहतर नॉलेज आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। देयर वाज अनदर कोट, इन थ्योरी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थ्योरी। जो बुक्स जब आपकी बुक्स ये कहती हैं कि इन थ्योरी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस देयर इज, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सो थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नेवर डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ थ्योरी, रादर इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। बट वंस थ्योरी इज डन, देन यू हैव टू सी द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ दैट स्पेसिफिक थिंग। फिर आपको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव्स भी देखने पड़ेंगे कि उस चीज़ को करने के जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं वो क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सो प्रोजेक्ट क्या लिया जाए, आप बताइए। देखो प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, हमारे पास टाइम भी कम है और हम लोगों ने जो है इस चीज़ को करके देखना है। स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज ड्राइविंग ओवर हेयर, तो मैं आते हुए सोच रहा था कि कौन सा बहुत सिंपल वे हो, कौन सा बहुत सिंपल प्रोजेक्ट हो जिसको हम लें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सो जो मुझे जो बहुत सिंपल प्रोजेक्ट जो मेरे माइंड में आया, दैट वाज कि हम लोग टी मेकिंग प्रोजेक्ट जो है उसको एज अ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो इसमें आपको ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोजेक्ट है कि नहीं, और आप जो हंस रहे हैं पीछे, ज़्यादा हंसने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोजेक्ट एंड ओवर टाइम आई विल जस्टिफाई यू कि ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ कि ये प्रोजेक्ट है कि नहीं। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि टेम्परेरी एंडेवर होता है, स्पेसिफिक स्टार्ट और एंड होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। टी मेकिंग प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट टाइम जब बनाया जाएगा तो कोई और टी बनेगी, ये वाली टी नहीं बनेगी। ठीक है, स्टार्ट और एंड टाइम भी है, ऐसा तो नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी चाय बनाते रहेंगे। एंड देन रिसोर्सेज जो आप यूज़ करेंगे, जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, वो भी आपके पास जो है वो लिमिटेड हैं। एंड देन ऑब्जेक्टिव भी है कि एट द एंड टी बन जाए। सो दिस इज़ जस्टिफाइड कि ये जो चीज़ है जो हम प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट। सो जो पहली चीज़ हमने देख लिया, पहला कॉन्सेप्ट वो देख लिया प्रोजेक्ट का, कि प्रोजेक्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट जो है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं। सो कुछ किसी भी चीज़ को जब प्रोजेक्ट कंसिडर करना हो तो इसी तरह से आपने देखना है कि ये प्रोजेक्ट है कि नहीं। ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। मैं आपसे पूछता हूँ कि यार कितना टाइम लगेगा चाय में। मेरे पास एक अचानक से गेस्ट आ गए और बड़े पुराने दोस्त थे, बड़े अच्छे जानने वाले थे। जैसे ही वो आए मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, बैठिए प्लीज़। और अब मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आप चाय पी के जाइएगा, और उन्होंने फ़ौरन से क्वेश्चन फ्लोट कर दिया, यार कितना टाइम लगेगा चाय में, देर लग जाएगी बहुत। अब मुझे उनको आंसर करना है कि मेरे प्रोजेक्ट का तो टाइम कितना है। सो मेरे कस्टमर जो है, जो कि मेरे जो गेस्ट हैं वो हैं, मैंने उनको ये बताना है कि मेरे प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन कितना है। सो व्हाट आई डू, व्हाट आर द ऑप्शंस। एक तो ये मैं ऑन द फ्लाई कह दूं कि सर बस 15-20 मिनट लग जाएंगे। वो अब क्लाइंट अगर ज़्यादा कंसर्न्ड है, यू से 15 या 20, यू कैन बी स्पेसिफिक। सो व्हाट वी डू फॉर दिस प्रॉब्लम इज दैट, हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को थोड़ी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बना लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स बना लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स क्या बनाते हैं, लेट्स राइट देम डाउन। एक स्टेप ये कर लेते हैं, बाय आइटम्स। सपोज कीजिए कि मेरी जो शॉप है वो बिल्कुल गली के कॉर्नर पे है और वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी। सो मैंने कहा कि मेरा जो पहला जो काम होगा बाय आइटम्स होगा।
दूसरा काम विल बी बॉयल वाटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग पानी बॉयल करेंगे। ठीक हो गया जी। थर्ड स्टेप हम कह देते हैं कि जब पानी बॉयल हो जाएगा तो हम लोग कहते हैं कि मिक्स आइटम्स। हम लोग आइटम्स को मिक्स कर लेंगे, जो आइटम हम बाय करके लाए, जो हमने जो शुगर या जो टी ऐड करनी है उनको मिक्स कर लेंगे। एंड देन एज अ फोर्थ स्टेप हम कह लेते हैं कि वी विल बॉयल दिस मिक्सचर। हम लोग मिक्सचर को बॉयल कर लेंगे। ठीक हो गया ना। जब बॉयल मिक्सचर हो जाएगा तो जो हम लास्ट चीज कहते हैं वो हम कह देते हैं कि टी इज रेडी। अब आप मेरी टेक्निक से एग्री कर रहे हैं कि मैंने क्या किया कि मेरा जो प्रोजेक्ट था उसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया। पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट लगाना मेरे लिए मुश्किल था, सो मैंने इसकी एस्टिमेशन के लिए क्या किया, सबसे पहला काम कि मैंने इसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया। ठीक हो गया। सो वेन एवर यू डिवाइड, यू डिकम्पोज योर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स, यू कॉल दिस एक्टिविटी एज WBS डेवलपमेंट। आप कहते हैं कि हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना दिया एक तरह से। ठीक है। सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट ले लिया हमने WBS का कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हेन यू विल डिवाइड योर होल प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स। तो आप कहेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका हमने WBS बना लिया। सो दिस इज माय WBS, और मैंने WBS बना लिया। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप मैं करता हूं वो ये है कि मैं यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन एंटर करता हूँ, बिकॉज कस्टमर का कंसर्न तो ड्यूरेशन से है। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि बाय आइटम पे, बिकॉज स्ट्रीट कॉर्नर पे है बिल्कुल शॉप, तो इस पे मेरे 5 मिनट्स लग जाएंगे। एंड बॉयल मिक्सचर, पानी बॉयल होने में 10 मिनट्स लग जाएंगे। एंड देन मिक्सिंग ऑफ आइटम्स पे 1 मिनट लग जाएगा। जस्ट डालना है और मिक्सअप करना है। बॉयल मिक्सचर, ऑलरेडी पानी बॉइल्ड है, गर्म है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, चलो 2 मिनट हम दे देते हैं कि 2 मिनट्स में दोबारा से मिक्सचर भी बॉयल हो जाएगा। ठीक हो गया। एंड देन टी इज रेडी। और टी इज रेडी का क्या ड्यूरेशन लिखूं मैं? बॉयल मिक्सचर में तो एक काम हो रहा है, ठीक है, मिक्स आइटम में भी काम हो रहा है, बॉयल वाटर में भी काम हो रहा है, बाय आइटम में भी कोई काम हो रहा है। टी इज रेडी, टी इज रेडी में कोई काम हो रहा है? आपको देख रहे हैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो? नहीं हो रहा। सो आपके ख्याल से क्या हुआ कि मैंने ये गलत एक्टिविटी लिख दी है एक। ठीक हो गया। लेकिन मेरा कस्टमर किस चीज के बारे में कंसर्न है, वो क्या सुनना चाह रहा है मुझसे, वो मेरे पूरे प्लान में देखेगा कि यार टी इज रेडी किधर है, चाहे मुझे कहां तैयार मिलेगी। सो लिखना भी तो इंपॉर्टेंट था, बिकॉज क्लाइंट कंसर्न है इस बारे में। अच्छा, इसका ड्यूरेशन कितना लिखूं मैं? ड्यूरेशन तो इसका है ही कोई नहीं। टी इज रेडी का खुद तो कोई ड्यूरेशन नहीं है। जब बॉयल वाटर हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, तो टी तो रेडी हो जाएगी। दिस इज एन इंडिकेशन। सो मैं क्या कहता हूं कि मैं यहां पे 0 मिनट लिख देता हूं। ठीक हो गया। सो मुझे टी इज रेडी लिखना पड़ा क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट चीज है जो कि मेरा कस्टमर जो कि कस्टमर जिसके बारे में कंसर्न है, क्योंकि इसमें काम कोई नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसको 0 मिनट कर दिया। ठीक हो गया। सो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है जिसका ड्यूरेशन 0 मिनट हो और वो सिग्निफिकेंट हो, उसको हटा ना सकते हो, उसे माइलस्टोन कहते हैं। ठीक हो गया। सो एक और कॉन्सेप्ट जो हमने देख लिया, इट इज माइलस्टोन। माइलस्टोन is the significant event on your project plan for which your sponsor and management is concerned, and it has got a duration 0. ये लिखना जरूरी है बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मगर ड्यूरेशन इसका 0 होगा। सो आपको डेफिनेशन मैं फिर रिपीट भी कर देता हूं कि माइलस्टोन
Milestone is a significant event in your project plan for which your customer and management is concerned and it has got a duration 0. तो जब भी आप प्लान पे देखें, जब 0 मिनट लिखा हो या 0 डेज लिखा हो या 0 वीक लिखा हो तो समझ जाएं कि ये माइलस्टोन है. ओके जी, माइलस्टोन की डेफिनेशन हमने देख ली कि ये तो चलो एक और कॉन्सेप्ट भी हमें बात करते करते हम लोग बेसिकली एक बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो चले हम उसको नोट डाउन करते रहते हैं. ठीक हो गया. नाउ स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि इस स्टेज पे अब हमने ड्यूरेशन लिख लिया, कस्टमर का सवाल पड़ा हुआ है टेबल पे कि कितना टाइम लगेगा चाय में, कितना टाइम लगेगा जी, बता सकते हैं आप मुझे? 5 + 10, 15 + 1, 16 + 2, 18. हमारा कितना टाइम लग गया? 18 मिनट्स. एग्जैक्टली जो आपने बताया था, जो आपने कहा वही यहाँ पे निकले. 18 मिनट्स का हमारा ड्यूरेशन हो गया इस प्रोजेक्ट का. नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये जो 18 मिनट्स हमारा जो ड्यूरेशन आ गया, ये किस तरह से आया, इस पर हम थोड़ी देर में जरा बात करते हैं कि ये ड्यूरेशन किस तरह से निकाला हमने. लेकिन 18 मिनट्स हमारे पास ड्यूरेशन आ गया. हम चले गए कस्टमर के पास और हमने कस्टमर को कहा कि सर 18 मिनट में चाय तैयार हो जाएगी. हमने से कहा कि 18 मिनट्स में चाय तैयार हो जाएगी. ठीक हो गया. नाउ ये 18 मिनट्स कैलकुलेट कैसे हुए थे? ये कैलकुलेट इस तरह से हुए थे कि आपने बेसिकली ये देखा, आपने इन सबका ड्यूरेशन सम कर लिया. आपने कहा पहले 5 मिनट में आइटम खरीदे जाएंगे, उसके बाद 10 मिनट में पानी बॉयल होगा, उसके बाद 1 मिनट में मिक्स आइटम होंगे, उसके बाद 2 मिनट में मिक्सचर बॉयल होगा. ठीक हो गया. अब इस स्टेटमेंट को जरा अपने माइंड में रिवाइज कीजिए. एक तरह से आपने ये कहा कि बॉयल वाटर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक 1 एक्टिविटी खत्म ना हो जाए, एंड देन मिक्स आइटम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक बॉयल वाटर ना हो जाए, एंड देन आपने कहा कि बॉयल मिक्सचर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आइटम्स मिक्स ना हो जाए, एंड देन टी इज रेडी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मिक्सचर बॉयल ना हो जाए. सो मैंने हर एक के सामने उस एक्टिविटी का नंबर लिख दिया जो एक्टिविटी खत्म होने के बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी. तो मैं कहता हूं कि बॉयल वाटर तब स्टार्ट होगा जब एक्टिविटी 1 खत्म हो जाएगी, मिक्स आइटम तब स्टार्ट होगा जब एक्टिविटी 2 खत्म हो जाएगी, एंड सो ऑन. सो ये जो नंबर मैंने लिखे स्टूडेंट्स, ये नंबर मैंने लिखे, इन्हें कहते हैं प्रीडिसेसर. ठीक हो गया. इन्हें कहते हैं प्रीडिसेसर. एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि प्रीडिसेसर क्या होता है. सो प्रीडिसेसर क्या होता है? वो एक्टिविटी जिस पे एक एक्टिविटी डिपेंड कर रही हो. इफ एक्टिविटी बी इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी ए, यू विल कॉल एक्टिविटी ए एज प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी बी. गॉट द कॉन्सेप्ट? तो प्रीडिसेसर कॉन्सेप्ट भी आ गया. और प्रीडिसेसर हमने बेसिकली जो हमने 18 मिनट्स कैलकुलेट किए थे, ये हमारे माइंड में जो चल रहा था पीछे, ये बिल्कुल चल ही इस तरह से रहा था कि सबसे पहले हमने कहा यार कि सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा, बाय आइटम होंगे, उसके बाद क्या होगा, बॉयल वाटर होगा, एंड देन मिक्स आइटम्स हो जाएंगे, एंड देन बॉयल मिक्सचर हो जाएगा, एंड देन टी इज रेडी. ओहो टी इज रेडी, लेकिन टी इज रेडी तो टाइम नहीं ले रहा, तो मैं कैसे बनाऊं उसको? चले मैं इसको ऐसे बना देता हूं. ठीक हो गया. मैं इसको एक डायमंड टाइप शेप बना देता हूं. स्टूडेंट्स जब आपने ये देखा तो आपने कहा कि यार इसका ड्यूरेशन था कितना, 5 मिनट्स, इसका ड्यूरेशन था 10 मिनट्स, इसका था 1 मिनट, इसका था 2 मिनट्स. तो आपने इनका सबको सम किया. आपने कहा यार कि यहां से शुरू हुए और यहां तक जो है ना 18 मिनट लग जाएंगे. आपने 18 मिनट्स कैलकुलेट कर लिए. ठीक हो गया. सो ये देखिए, इसका प्रीडिसेसर कौन है? इसका प्रीडिसेसर ये है. इसका प्रीडिसेसर कौन है? ये है. ये देखिए, इसका प्रीडिसेसर ये है, इसका प्रीडिसेसर ये है, इसका प्रीडिसेसर ये है, और इसका प्रीडिसेसर ये है, और यही प्रीडिसेसर हमने यहां पे लिख दिए.
ठीक हो गया। अब देखिए, अब जब ये बार्स मैंने बनाई तो बार्स के फॉर्मेट में आपको जरा चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ आ गई ना। ये देखिए, ये चीज़ क्लियर हो गई अब यहाँ से कि पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, हाँ 18 मिनट, ठीक हो गया। सो ये जो बार्स हमने बनाई टाइम लाइन के हिसाब से, इसे कहते हैं गैंट चार्ट। सो एक चीज़ और क्लियर हो गई हमें कि गैंट चार्ट क्या होता है, ठीक हो गया। एक और चीज़ कि जो माइलस्टोन है उसको इस तरह से बनाया जाएगा हमेशा डायमंड की सूरत में। क्यों? क्योंकि उसका ड्यूरेशन कोई नहीं है, और हम तो जो लाइन लगाते हैं वो ड्यूरेशन के हिसाब से लगाते हैं। जब ड्यूरेशन ही नहीं तो लाइन लगेगी ही नहीं, तो उसको हमने शो करने के लिए एक डिफरेंट शेप बना दी। वो हमने कहा कि हम लोग डायमंड की शेप बनाएंगे, ठीक हो गया। आप चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड हम इसको एज अ डायमंड ले लेते हैं, ठीक हो गया जी। नाउ अब ये देखिए कि हर ये एक्टिविटी जब खत्म होगी तो ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी, देन ये स्टार्ट होगी, देन ये स्टार्ट होगी। इसका मतलब है कि जब ये फिनिश होगी देन ये स्टार्ट होगी, देन जब ये फिनिश होगी देन ये स्टार्ट होगी, जब ये फिनिश होगी देन ये स्टार्ट होगी, एंड जब ये फिनिश होगी देन ये स्टार्ट होगी। ऐसी बात है ना, यही हम कह रहे हैं। ये तस्वीर तो हमें यही शो कर रही है, क्या ऐसा नहीं है? ये इमेज हमें यही शो कर रहा है ना। सो हमने कहा कि ठीक हो गया। सो हमने जब हमने ये देखा तो हमें पता लगा कि जो रिलेशनशिप है वो क्या है, फिनिश टू स्टार्ट। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इट इज फिनिश टू स्टार्ट। रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब एक और बात समझ आ गई हमें कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट भी होता है, ठीक होगी बात जी। कस्टमर के पास चले गए, कस्टमर को जाकर कहा यार कि ठीक है आपका जो है ना 18 मिनट्स जो है वो लग रहे हैं, 18 मिनट में चाय तैयार हो जाएगी। गेस्ट जो थे वो थोड़ी जल्दी में थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 18 मिनट्स इतना टाइम तो मैं वेट नहीं कर सकता, तो खैर है फिर मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह, फिर चाय पी जाएंगे, एनी टाइम है फिर इस टाइम। आप नहीं सर आप तो इतने अरसे बाद आए हैं, आप तो चाय पी के जाएंगे, ऐसे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। सो आपने क्या किया, आपने कहा यार कि सर लेट मी थिंक, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपको बताता हूँ कि क्या जो है ना हो सकता है। सो आपने क्या किया, मैं थोड़ी सी अगली उस पर आ जाता हूँ, और मैं ये जो हमने बार बनाई थी इसको मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे नीट करके बना देता हूँ, ठीक है। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। पहले देखिए आप वापस आए, आपने आगे कहा यार कि पहले बाया आइटम होंगे, फिर बॉयल वाटर होगा, फिर मिक्स आइटम होंगे, काम तो सारे ठीक लिखे हैं मैंने। फिर आप कहते हैं यार कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं पहले पानी बॉयल करने के लिए रखूं, अब पानी बॉयल होने में तो 10 मिनट लेगा, उस वक्त तक तो मैंने बैठना ही है सिर्फ, तो मैं जब मैं पानी बॉयल करके रख लूंगा फिर मैं भाग के जाऊंगा मार्केट और मैं जाके आइटम्स खरीद लाऊंगा, और उसका टाइम वैसे भी 5 मिनट है, तो जब मैं जाऊंगा वापस आऊंगा 5 मिनट अभी भी रहते होंगे। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं कि हम जो है बाय आइटम्स जो हैं वो और बॉयल वाटर साथ साथ कर लेते हैं, बस इसको पानी में रखेंगे और चले जाएंगे। सो इन दोनों एक्टिविटीज़ को हम साथ साथ कर लेते हैं। तो जब हमने साथ साथ करने की बात की तो हमने कहा कि बजाय इसके, जिस तरह हमने यहाँ पे देखिए किया था कि हमने इनको हमने कहा पहले बायो आइटम करें फिर ये करें, हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करें, अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं। हमने इसको नई तस्वीर बना ली, बायो आइटम होंगे और साथ ही बॉयल वाटर हो जाएगा। डबल टाइम ले रहा है इसलिए इस लेंथ की बार लंबी, इस बार की लेंथ ज़्यादा है, ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद मिक्सचर बॉयल करेंगे, एंड देन उसके बाद आइटम मिक्स करेंगे, एंड देन उसके बाद मिक्सचर बॉयल कर लेंगे, एंड देन हमारा माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। देखा ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुरू हुए 5 मिनट का काम ये था, ये हो गया, और यहाँ पे हमारे 10 मिनट पूरे हुए, एंड देन हमारे यहाँ पे एक मिनट मिक्सचर का लग गया, एंड देन हमारा यहाँ पे 11 हो गए, और देन यहाँ पे ये 2 मिनट और डाले तो ये हो गए 13 मिनट। अब प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना हो गया, 13 मिनट। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटीज पैरेलल में कर दी हमने, तो अब प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना आ गया, 13 मिनट्स। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 13 मिनट्स आ गया आपके पास, इट इज 13 मिनट्स नाउ। सो हमने क्या किया, इन फैक्ट what we have done, we have reduced the total duration of the project by making some of independent activities in parallel.
दो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपस में डिपेंड नहीं कर रही थी, हमने उनको पैरेलल में एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे देखिए, हमने उनको पैरेलल में एग्जीक्यूट किया इस जगह पे, और वो एग्जीक्यूट करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे 5 मिनट बच गए। बजाय इसके कि हम पानी को बॉयल करते हुए होते हुए देखते रहते, हम उस टाइम के अंदर गए और चीज़ें बाय कर लें। ठीक हो गया। सो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फास्ट ट्रैकिंग। Whenever you reduce the total duration of project by making some independent activities in parallel, you call this process as fast tracking. So एक और चीज़ हमने यहाँ पढ़ ली कि फास्ट ट्रैकिंग क्या होगी। तो हमने कहा यार कि हमारी फास्ट ट्रैकिंग ये होगी कि हम लोग जब वो जो एक्टिविटीज़ जो कि डिपेंडेंट नहीं है उनको अगर पैरेलल एग्जीक्यूट कर लें तो हमारा प्रोजेक्ट का टाइम रिड्यूस हो सकता है। सो इस देखिए, इस टेक्निक से हमारे 5 मिनट बच गए, 18 मिनट के बजाय 13 मिनट पे आ गए हम लोग। ठीक हो गया। सो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप था ये तो था फिनिश टू स्टार्ट। देखिए इसका फिनिश आ रहा था, इसका स्टार्ट आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका भी स्टार्ट है और इसका भी स्टार्ट है। सो रिलेशनशिप क्या हो गया, स्टार्ट टू स्टार्ट। सो एक चीज़ और हमने यहाँ पे देख ली कि रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ फिनिश टू फिनिश नहीं हो सकता, स्टार्ट टू स्टार्ट भी हो सकता है। कि आप दो एक्टिविटीज कहें यार तुम दोनों साथ इकट्ठे स्टार्ट हो जाओ, बजाय इसके ये कहें कि तुम ये एक्टिविटी खत्म होगी तो फिर ये काम शुरू करना, हम कहें कि जब ये काम शुरू करो साथ ही ये काम शुरू कर देना। तो स्टार्ट टू स्टार्ट भी हो सकता है। चलो जी, एक नया कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया कि रिलेशनशिप टाइप क्या होती है, और साथ हमने फास्ट ट्रैकिंग भी देख ली, और साथ हम जो है कस्टमर का काम भी कर रहे हैं। सो हम चले गए वापस गेस्ट के पास। तो सर सामने सर मैंने कोशिश की है, बड़ा देखा है मैंने, और मुझे लगा है कि मैं जो है ना ये चाय 13 मिनट में बना दूंगा, तो आप प्लीज़ बैठिए और चाय पी के जाइएगा। कस्टमर ने कहा, यार गेस्ट ने कहा, नहीं सर आप बड़ी शुक्रिया आपका, आपने बड़ी एफर्ट की और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप इतनी दिल से मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो फिर किसी दिन सही फिर पी लेंगे चाय, कोई ज़रूरी बात नहीं है। आपने कहा नहीं सर आप मेरे से बाद आए हैं, नहीं ये भी टाइम ज़्यादा है, अच्छा लेट मी थिंक मोर, मुझे दोबारा सोचने दें। ठीक है, आप वापस आए और आपने आके कहा कि यार ठीक है, चलो हम ये करते हैं कि अगर मैंने जो अभी मेरा स्टोव था वो इकॉनमी में चल रहा था, वो स्लो स्पीड में चल रहा था, इससे मैं फुल पे चला देता हूँ। गैस तो ज़्यादा कंज्यूम होगी, फ्यूल तो ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन अब ज़रूरी है चाय पिलाना, तो मैं फुल पे चला लेता हूँ, तो मेरा पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो ये जो पानी पहले 10 मिनट में बॉयल हो रहा था, अब ये 8 मिनट में भी हो जाए। तो जब ये 8 मिनट में हो जाएगा तो ये चीज़ जो है देखिए कि मज़ीद 2 मिनट और कम हो जाएगा टाइम, तो ये 11 मिनट्स पे आ जाएगा। सो आपने क्या किया कि यू हैव इन्वेस्टेड मोर रिसोर्स टू स्क्वीज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने एडिशनल रिसोर्स लगा दिया कि आपका जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो रिड्यूस हो जाए, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रैशिंग। इस टेक्निक को क्रैशिंग कहा जाता है। ठीक हो गया। सो हमने यहां पे एक कॉन्सेप्ट अभी और देख लिया कि यार ये क्रैशिंग जो है ये भी कोई चीज है। सो क्रैशिंग की फॉर्मल डेफिनेशन, व्हेनेवर यू रिड्यूस द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय introducing additional resource, you will call it as crashing. ओके। सो आप कस्टमर के पास आए और कस्टमर ने आके आपको कहा कि यार आपने कहा सर 11 मिनट में, उसने कहा ओके सर बनाया, ठीक है नाउ इट इज ओके। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए कि 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो लोग वो जो इस जगह पे जैसे ही पानी बॉयल करने की रखें वो फौरन से काम खत्म करने के लिए जाएं और जाके आइटम खरीद के ले आए, तो वो देखिए पहले ही 5 मिनट में जाएंगे और आइटम खरीद के लेके आएंगे। उनके पास 5 और एक्स्ट्रा मिनट बच जाएंगे बाद में। ठीक है, 5 मिनट उनके पास जो ये वाले हैं ये उनके पास फारिग पड़े होंगे, जिसमें वो बैठ के पानी बॉयल होता देख रहे होंगे। एक लोग हो सकते हैं मेरी तरह लेजी, वो कहे यार कि अच्छा अभी तो 5 मिनट, मुझे तो 5 मिनट लगेंगे और पानी बॉयल 10 मिनट में होगा, सो बैठ जाओ कि चल मैं गाना सुनता हूँ फिर मैं जाऊँगा। सो वो बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम अब मैं आफ्टर 5 मिनट्स जाऊँगा। सो
वो ये भी कर सकते हैं कि वो इस जगह पे जाएंगे, वो इस जगह पे आइटम बाय करने जाएंगे, और जैसे ही वो आइटम बाय करके पहुंचेंगे पानी बॉयल हुआ होगा। तरीके तो दोनों ठीक है, पहले 5 मिनट में चले जाओ या आखिरी 5 मिनट चले जाओ। ये आज़ादी हमें इसी एक्टिविटी में नज़र आ रही है और किसी एक्टिविटी में नहीं है। और इस आज़ादी के होने की वजह क्या है कि आपके पास ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई है, देखिए 5 मिनट, ये जो 5 मिनट का टाइम आपके पास है, ये जो 5 मिनट्स का टाइम है, ये आपके पास लिवरेज टाइम है। ये क्वेश्चन है, आप इसे मूव कर सकते हैं और प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। ये अगर आप पहले 5 मिनट में चले जाएं या बाद के 5 मिनट में चले जाएं, प्रोजेक्ट तो लेट नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन को कहते हैं स्लैक। सो एक और जो कॉन्सेप्ट है, इट इज स्लैक, इसे कहा जाता है स्लैक। ठीक हो गया। सो स्लैक क्या होता है कि द टाइम, the cushion time or the leverage time which you have got, by which you can delay one activity and it won't affect early start of next activity or the deadline of the project. So ये इस तरह इस चीज़ को कहते हैं स्लैक। और स्लैक आपने देखा यहाँ पे, अगर मैं इस एक्टिविटी देखूँ तो मेरे पास 5 मिनट का स्लैक मौजूद है। ठीक हो गया। सो एक और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देख लिया स्टूडेंट्स, दैट इज स्लैक। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश स्टार्ट टू स्टार्ट देखा, इस तरह से यहाँ बताता चलूँ कि 2 और टाइप के जो आपके पास रिलेशनशिप होते हैं, फिनिश टू फिनिश एंड स्टार्ट टू फिनिश भी होता है। सो इस तरह से जो रिलेशनशिप है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। हमने यहाँ पे जस्ट इन कॉन्सेप्ट्स को सरसरी सा देखा और मोटा मोटा देखा, जस्ट इसलिए कि आपको ज़रा हल्का सा आइडिया हो जाए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इनफैक्ट हैं क्या। अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स बाय बुक क्या है, बाय डेफिनेशन क्या है। ठीक है, दिस वॉज जस्ट आप कह सकते हैं आपका जो स्टार्टर था, दिस वॉज एपेटाइजर फॉर यू, और हमने ये इस एपेटाइजर को भी कंडक्ट किया। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो है आप रिव्यू कर लेते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रोफाइल देखा कि व्हाट डू आई हैव गॉट अ रेलेवेंट एक्सपीरियंस टू इंटरेक्ट विद यू पीपल और नॉट। देन हम लोगों ने आउटलाइन देखी कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, प्राइमवेरा की भी और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की भी। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि उसके बाद हम लोगों ने बुक्स देखी, जो बुक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस कोर्स में। और प्राइमवेरा की बुक आपको नहीं बताई गई, उसकी रीज़न ये है कि प्राइमवेरा जो है दैट्स अ ओरेकल सॉफ्टवेयर, और इसकी बुक जो है इस तरह कॉमनली अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमने जो चीज़ देखी, बट प्राइमवेरा का बहुत ज़्यादा स्टफ नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, सो यू कैन कंसल्ट इंटरनेट फॉर द इंफॉर्मेशन अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए हो। उसके बाद जो चीज़ हमने देखी दैट वाज कि हम आपसे क्या क्या डिलीवरेबल्स एक्सपेक्ट करते हैं इन दिस कोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक सैम्पल प्रोजेक्ट लिया विच वाज अ फनी प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट में से हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए। हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट क्या है। हमने कहा कि यार प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्पररी एंडेवर, डेफिनेट स्टार्ट एंड फिनिश डेट, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा इसका, और लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। ठीक हो गई बात। फिर हमने WBS देखा और उसको हमने कहा कि WBS इज डिकम्पोजिंग योर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स। ओके हो गया जी। फिर हमने माइलस्टोन देखा, हमने कहा कि इट इज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट ऑन योर प्रोजेक्ट प्लान फॉर विच योर कस्टमर इज लुकिंग एंड इट हैज़ गॉट ड्यूरेशन 0। एंड देन प्रीडिसेसर की बात हुई। प्रीडिसेसर, if activity B cannot start before finishing activity A, you will call activity A as predecessor. In fact, when activity B is dependent on activity A, you will call activity A as predecessor of activity B. Students, उसके बाद हम लोगों ने देखा गैंट चार्ट, और हम लोगों ने ये बार्स की तरह से कुछ लाइन्स लगाई, और हमने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा डेमोन्स्ट्रेटर था जिसने हमारे प्रोजेक्ट को बड़े अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। सो हमने कहा यार कि हाँ ये तो अच्छा तरीका है। तो इस तरीके को हमने एक नाम दे दिया विच वॉज गैंट चार्ट। इट इज़ अ फॉर्मल टेक्निक ऑफ ड्राइंग योर प्रोजेक्ट। एंड देन स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि इफ वी रिड्यूस द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट
by making some activities, some independent activities in parallel. By executing some independent activities in parallel, you call this approach as fast tracking. Then student, crashing की बात हमने देखी, और crashing को हमने कहा कि if you reduce the total time of project by adding more resources to the project, you call this technique as crashing. Student, उसके बाद slack की बात आई, तो हमने कहा कि it is a leverage time or cushion time by which you can delay an activity and it won't affect the early start of next activity or the finish date of the project. Students, then हमने कुछ relationships देखे. हमने कहा यार कि हमारे पास finish to finish का relationship है, start to start का है, finish to start है, start to finish है. ठीक है जी. हम लोगों ने देखा practically कि project हमने जो start किया था, तो हम लोग अंदाज़ा कर रहे थे कितना टाइम लगेगा जी. हमने कहा कि 20-25 मिनट लगेंगे. उसके बाद जब हमने थोड़ी सी एफर्ट की तो हमने एग्जैक्टली बता दिया कि 18 मिनट लगेंगे. और देन कस्टमर के इंसिस्ट करने पे हम लोगों ने थोड़ी सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज अप्लाई किया और हमने कह दिया हम इसको 15 मिनट पे ले आए, और इवन देन उसके बाद हम इसको 13 मिनट पे ले आए, और इवन इसको 11 मिनट्स पे भी रिड्यूस कर लिया हमने. तो हमने जस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हुए 18 मिनट का काम 11 मिनट पे ले आए. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर्स. जब आपको 6 साल का प्रोजेक्ट प्लान करके देके और उसको आपको 3 साल पे एग्जीक्यूट करना होगा, 3 साल पे लेके आना होगा, यू हैव टू सी हाउ ऑनेस्टली यू कैन रिड्यूस द टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट बाय अप्लाइंग दीज टेक्निक्स एज वेल एज मैनी अदर एडवांस टेक्निक्स. सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं. दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर, और इसमें जस्ट हल्की फुल्की बातचीत हुई. स्टार्टर था, एपेटाइज़र था. इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इन कॉन्सेप्ट्स को और प्राइमवेरा को बहुत डिटेल में देखेंगे. इंशाल्लाह कल मिलेंगे. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.